Chapter 4. A Question of Trust. It is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? ऐसा कहा जाता है कि चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर को सेट करना चाहिए, लेकिन यह भी कहा जाता है कि चोरों में मान सम्मान होता है। ये कहानी किस कहावत को दर्शाती है? Read and find out. What does Horace Denby like to collect? Horace Denby को क्या इकट्ठा करना पसंद है? Why does he steal every year? वो हर साल चोरी क्यों करता है? Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried about his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of high fever in summer. हर कोई सोचता था कि हॉरस डेनबी एक अच्छा, ईमानदार इंसान है। ये लगभग 50 साल का था और अविवाहित था, और वह एक हाउसकीपर के साथ रहता था जिसे उसके स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती थी। असल में गर्मियों में उसे हे फीवर के हमलों का शिकार होना पड़ता था। उसके अलावा वह आमतौर पर बहुत अच्छा और खुश रहता था। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. उसने ताले बनाए और अपने व्यवसाय में 2 सहायकों के लिए पर्याप्त रूप से सफल रहा। हाँ, हॉरस डेनबी अच्छा और सम्मानित इंसान था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. 15 साल पहले हॉरस ने जेल पुस्तकालय में अपनी पहली और एकमात्र सज़ा काटी। उन्हें दुर्लभ महंगी किताबें पसंद थीं, इसलिए वह हर साल एक तिजोरी लूटा करते थे। हर साल वह सोच समझकर योजना बनाते थे कि वे क्या करेंगे। 12 महीने तक चलने के लिए पर्याप्त चुराया और गुप्त रूप से एक एजेंट के माध्यम से अपनी पसंद की किताबें खरीदते थे। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks, he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. अब जुलाई की तेज़ धूप में चलते हुए उसे यकीन हो गया कि इस साल की डकैती बाकी हर बार की तरह सफल होगी। 2 सप्ताह से वे शॉर्ट ओवर ग्रेज में घर का अध्ययन कर रहे थे। उसके कमरे, उसके बिजली के तारों, उसके रास्तों और उसके बगीचों को देख रहे थे। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to movies. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. आज दोपहर 2 नौकर जो ग्रेंज में रह रहे थे जबकि परिवार लंदन में था, मूवीज़ देखने के लिए गए। हॉरस ने उन्हें जाते देख लिया। हे फीवर के अटैक की हल्की सी भनक लगने के बाद भी वे खुश थे। वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आए। उसके औजार सावधानी से उसकी पीठ पर एक बैग में पैक किए गए थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels
in the grand safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. ग्रैंज तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड मूल्य के जेवर थे। अगर वो उन्हें एक एक करके बेचता तो उसे कम से कम 5,000 मिलने की उम्मीद थी, जो उसे अगले 1 साल तक खुश रखने के लिए बहुत थे। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. Autumn में, शरद ऋतु में बिक्री के लिए 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें आ रही थीं। अब उसे वह पैसे मिलेंगे जो वह उन्हें खरीदना चाहता था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key, and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. उसने हाउसकीपर को किचन के दरवाजे के बाहर एक हुक पर चाबी टांगते हुए देख लिया था। उसने ग्लव्स पहने, चाबी उठाई और दरवाज़ा खोल लिया। वो हमेशा इस चीज़ को लेकर सतर्क रहता था कि वो कभी भी किसी भी तरह से कोई फिंगरप्रिंट ना छोड़े। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. किचन में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। उसने हलचल करी, थोड़ा शोर किया और अपनी पूँछ को एक बहुत ही फ्रेंडली तरीके से हिलाया। All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. Horace ने All right, Sherry कहा और वो वहाँ से आगे निकल गया। कुत्तों को शांत रखने के लिए अगर आपको कुछ करना होता है तो वो केवल इतना होता है कि आप उन्हें उनके सही नाम से पुकारें और उन्हें अपना प्यार दिखाएं। The safe was in the drawing room, behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. तिजोरी ड्राइंग रूम में थी, एक थोड़ी पुरानी सी पेंटिंग के पीछे। हॉरेस ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे किताबों की जगह पिक्चर्स इकट्ठी करनी चाहिए, पर पिक्चर्स इकट्ठी करने में उसे काफ़ी ज़्यादा जगह लगेगी और एक छोटे घर में किताबें एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. टेबल पर फूलों का एक बड़ा कटोरा था और हॉरेस को अपनी नाक में गुदगुदी महसूस हुई। उसने थोड़ी सी छोटी सी छींक दी और फिर अपना बैग नीचे रख दिया। उसने सावधानी से अपने औजारों को अच्छी तरह से जमा लिया। उसके पास 4 घंटे थे, जब तक नौकर वापस आते तब तक। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. तिजोरी को खोलना मुश्किल नहीं होने वाला था। आखिरकार उसने उसकी पूरी ज़िंदगी तालों और तिजोरियों के साथ ही गुजारी है। बर्गलर अलार्म काफ़ी ख़राब तरीके से बनाया गया था। उसने उसका तार काटने के लिए हॉल में गया। वो वापस आया और उसे ज़ोर से छींक आ गई, क्योंकि फूलों की सुगंध उसकी नाक तक पहुंच गई थी। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. लोग कितने मूर्ख होते हैं
जब उनके पास कीमती चीज़ें होती हैं। हॉरस ने ऐसा सोचा। एक पत्रिका के लेख ने सभी कमरों की योजना और इस कमरे की एक तस्वीर देते हुए इस घर का पूरा वर्णन किया था। लेखक ने यहाँ तक उल्लेख किया था कि इस एक पेंटिंग के पीछे तिजोरी है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. लेकिन हॉरस को ऐसा लगा कि फूल उसके काम के बीच में आ रहे थे और इसलिए उसने उसका चेहरा रुमाल में दबा लिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or a hay fever?" फिर उसे दरवाजे से एक आवाज़ सुनाई दी। यह क्या है? सर्दी या hay fever? Before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. Horace कुछ सोच पाता उससे पहले उसने कह दिया hay fever और उसे फिर से छींकें आने लग गई। The voice went on. You can cure it with a special treatment, you know, if we find out just what plant gives you the disease. I think you'd better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. वो आवाज़ आगे बढ़ी। आप इसे एक विशेष उपचार के साथ ठीक कर सकते हैं। आप जानते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा पौधा है जो आपको बीमार कर देता है, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो बेहतर होगा अगर आप अपने काम के बारे में गंभीर हैं तो। मैंने आपकी आवाज़ अभी अभी घर के ऊपर से सुनी। रीड एंड फाइंड आउट। पढ़िए और पता लगाइए। हु इज स्पीकिंग टू हॉरस डेनबी? हॉरस डेनबी से कौन बात कर रहा है? हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? इस कहानी में असली गुनहगार कौन है? इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. ये एक बहुत शांत, दयालु आवाज़ थी, लेकिन इसमें दृढ़ता थी। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी और शेरू उसके पास में खड़ी होकर उससे रगड़ रही थी। वो लड़की जवान थी, काफ़ी सुंदर थी और वह लाल रंग के कपड़े पहने हुई थी। वह चिमनी के पास चली गई और वहाँ अपने गहनों को सीधा करने लगी। Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time. Though I didn't expect to meet a burglar. नीचे शैरी, उसने कहा, कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए दूर थी। वह हॉरस पर मुस्काई और आगे बढ़ी। हालांकि मैं ठीक समय पर वापस आ गई। मुझे एक चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी वैसे। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. हॉरस को थोड़ी उम्मीद थी कि वह बच जाएगा, क्योंकि वो उससे काफ़ी मिलजुल कर बात कर रही थी। अगर वो उसके साथ सही तरीके से व्यवहार रखता है, अच्छे से बात करता है, तो वो परेशानी से बच सकता है। उसने जवाब दिया, मुझे परिवार में से किसी एक से मिलने की उम्मीद नहीं थी। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? उसने अपना सर हिलाया और कहा, मैं देख सकती हूँ कि आपको मुझसे मिलने में कितनी असुविधा हो रही है। अब क्या करेंगे आप? Horace said. My first thought was to run. Horace ने कहा, मेरे पहले विचार में ये आया कि मैं भाग जाऊं। Of course, you could do that.
but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. बिल्कुल, आप ये बेशक कर सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करती और उनको आपके बारे में सब कुछ बता देती। वो आपको एक बार में पकड़ लेती। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first, and then, he hesitated, a smile on his face, I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. हॉरस ने कहा, मैं बेशक पहले टेलीफोन के तार काटता और फिर, उसने हिचकिचाया, चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कहा, मैं ये सुनिश्चित करके जाता कि आप कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर सकें। कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। She looked at him seriously. You would hurt me? उसने उसे गंभीरता से देखा और कहा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. Horace एक सेकंड के लिए रुका और उसने कहा, मुझे लगता है मैंने जो कहा मैं उससे आपको थोड़ा घबराने की कोशिश कर रहा था। You didn't frighten me. तुमने मुझे नहीं डराया। Horace suggested, It would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. Horace ने सुझाव दिया, ये बेहतर होगा और अच्छा होगा कि आप ये भूल जाएं कि आपने मुझे देखा। मुझे जाने दें। The voice was suddenly sharp. Why would I? You were going to rob me. If I let you go, you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you. आवाज़ अचानक से तीखी और तेज हो गई और उसने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? तुम मेरे घर चोरी करने आए थे। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम केवल और केवल किसी और के घर चोरी करोगे। सोसाइटी को तुम जैसे आदमियों से बचाने की बहुत ज़रूरत है। Horace smiled. I'm not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason, and I hate the thought of prison. Horace मुस्कुराया और उसने कहा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराए। मैं केवल वही चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। मैं अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ और मुझे जेल के ख्याल से भी नफरत है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go, and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. वो हल्का सा हंस दी और उसने भीख मांगी, ये सोचकर कि उसने उसे मना लिया। देखो, मुझे तुमसे कुछ भी पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं बेताब हूँ। मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि इस तरह का काम फिर कभी भी नहीं करूँगा। मेरा वास्तव में विश्वास करो। मैं सच कह रहा हूँ। She was silent, watching him closely. Then she said, You are really afraid of going to prison, aren't you? वो चुप थी और उसे बारीकी से देख रही थी। फिर उसने कहा, तुम सच में जेल जाने से बहुत ज़्यादा घबराते हो, है ना? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वो उसके पास आई और उसने सर हिलाते हुए कहा कि मुझे हमेशा से गलत किस्म के लोग काफ़ी पसंद हैं। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. उसने टेबल पर रखे एक सिल्वर बॉक्स को उठाया और उसमें से सिगरेट निकाली। हॉरस, जो कि देख रहा था कि उसे उस लड़की को खुश करना होगा ताकि वो उसकी मदद कर सके, उसने तुरंत अपने ग्लव्स निकाले और अपना सिगरेट लाइटर निकाल के उसे दिया। You will let me go? He held the lighter towards her.
तुम मुझे जाने दोगी? उसने अपना लाइटर निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया। यस, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, उसने जवाब दिया। हाँ, लेकिन केवल तब जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, जो भी तुम कहो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But लंदन जाने से पहले मैंने मेरे पति को वादा किया था कि मैं मेरे ज्वेल्स बैंक को दे दूंगी, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ इस तिजोरी में रख दिया था। मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। आज रात एक पार्टी है, तो मैं उन्हें लेने के लिए नीचे आई थी। लेकिन हॉरस स्माइल्ड। You've forgotten the numbers to open the safe, haven't you? होरस मुस्कुराया और उसने कहा, तुम्हें इस तिजोरी को खोलने के लिए जो नंबर्स हैं वो भूल चुकी हो, है ना? Yes, replied the young lady. हाँ, उस जवान लड़की ने जवाब दिया। Just leave it to me and you will have them within an hour, but I'll have to break your safe. ये तुम मुझ पर छोड़ दो और मैं 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें वो दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी ये तिजोरी तोड़नी होगी। Don't worry about that. My husband won't be here for a month, and I'll have the safe mended by that time. तुम उसकी चिंता मत करो। मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे और तब तक मैं ये तिजोरी सुधरवा लूँगी। And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels, and gone happily. और 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरस ने उस तिजोरी को खोल लिया था, उसे उसके जवाहरात दे दिए थे और खुशी खुशी वहाँ से चला गया था। For 2 days he kept his promise to the young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. But he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. अगले 2 दिन तक उसने उसका प्रॉमिस पूरा रखा, लेकिन तीसरे दिन की सुबह उसे उन किताबों का ख्याल आया जो उसे चाहिए थी, और उसे पता था कि उसे अगर वो किताबें चाहिए तो उसे कोई दूसरी तिजोरी ढूंढनी होगी, लेकिन उसे उसका ये नया प्लान शुरू करने का मौका ही नहीं मिला। दोपहर तक पुलिस ने आके उसे जूल रॉबरी के लिए ग्रैंज में जूल रॉबरी के लिए गिरफ्तार कर लिया था। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. उसकी उंगलियों के निशान, क्योंकि उसने वो तिजोरी बिना ग्लव्स के खोली थी, पूरे कमरे में थे, और किसी ने उसकी इस बात का भरोसा नहीं किया कि घर के मालिक की पत्नी ने ही उससे ये कहा था कि वो उसके लिए वो तिजोरी खोल दे। The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. खुद पत्नी ने भी ग्रे बाल, तीखी जुबान और 60 साल की उम्र की औरत ने ये कहा कि ये बहुत ही बकवास कहानी है। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. Horace अब जेल में सहायक लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम कर रहा था। वह अक्सर सोचता है आकर्षक, चतुर युवा महिला जो उसी पेशे में थी, वो जिसमें वो था और जिसने उसे बुद्धू बनाया। जब कोई ऐसी बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि चोरों के बीच मान सम्मान होता है। स्टोरी बाय विक्टोरिया कैनन। ग्लॉसरी, हे फीवर,
means a disorder affecting the nose and throat caused by allergy to pollen or dust. hay fever का मतलब है नाक और गले को प्रभावित करने वाला एक विकार जो पोलन या धूल से एलर्जी के कारण होता है. Think about it. First, did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? पहला, क्या आपने कहानी खत्म होने के पहले ये शक किया था कि हॉरस डेनबी उस महिला को जैसा समझ रहा है वो वैसी इंसान नहीं है? अगर हाँ, तो आपने कब और कैसे ये समझा? सेकेंड, what are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? वो कौन से सबल वेज सूक्ष्म तरीके हैं जिससे उस महिला ने हॉरस डेनबी को यह सोचकर धोखा देती है कि वह घर की महिला है? क्यों? क्या हॉरस डेनबी को संदेह नहीं है कि कुछ गड़बड़ है? थर्ड, हॉरस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल but not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? हॉरस डेनबी एक अच्छे और सम्मानित इंसान थे, लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं थे. आपको क्या लगता है कि ये विवरण हॉरस के लिए कितना सही है? क्यों? क्या उसे एक ठेठ चोर पूरी तरह से टिपिकल चोर के रूप में क्यों नहीं कहा जा सकता? फोर्थ, हॉरस डेनबी was a meticulous planner but still he faltered. Where did he go wrong and why? हॉरस डेनबी काफ़ी सावधानीपूर्वक योजना बनाने वाले एक इंसान थे, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ा गया. वह कहाँ गलत हुआ और क्यों? Talk about it. First, do you think Horace Denby was unfairly punished or that he deserved what he got? पहला, क्या आपको लगता है कि हॉरस डेनबी को गलत तरीके से सज़ा मिली या फिर उसे जो मिला उसे वही मिलना चाहिए था? सेकंड, डू इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस? वुड यू, लाइक हॉरस डेनबी, do something wrong if you thought your ends justified the means? Do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly? क्या इरादे कार्यों को सही ठहराते हैं? क्या आप हॉरस डेनबी की तरह कुछ गलत करेंगे अगर आपको लगता है कि आपका लक्ष्य साधन को सही ठहराता है? क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थितियों में जिसमें ईमानदारी से कम कार्य करना क्षमा योग्य है? Suggested reading: The Unexpected by Ella Atkin, The Confession by Anton Chekho, A Case of the Defense by Graham Greene.